Okay, so Bacha Party, yesterday we had learnt about what is basically photoelectric effect. What is photoelectric effect, Bacha Party? So when light of a certain frequency is made to fall, if we are making light to fall of a certain frequency, when light of a certain frequency is made to fall on a metal surface. So let's say this is basically a metal surface, and when light is made to fall, this is of a certain frequency, okay, then electrons are emitted. Now as and when we keep on increasing the frequency, more and more electrons will be emitted. So what we have seen is, if you increase the intensity of light, more electrons will be emitted, okay, and if you increase the frequency, then more of kinetic energy would be there, okay, for the emitted electrons. There is something called as threshold frequency. What is threshold frequency? Threshold frequency is the minimum amount of frequency for the incident radiation which needs to be falling on the metal surface in order to generate electrons, okay. So threshold frequency is what, people? Threshold frequency is the minimum frequency, threshold frequency is the minimum frequency, which threshold frequency is the minimum frequency. Actually minimum frequency means what? ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं. आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे, यू विल कम टू अ स्टेज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कम आउट, ठीक है. सो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भाई साहब, व्हाट इज इट बेसिकली, okay, so let's say we have a metal surface here, bacha buddy. Let's say we have a metal surface here. This is basically a metal surface, okay. If we have a metal surface here, and on this there is an incident radiation, okay. So this is basically an incident radiation, as we saw yesterday कि as per Planck के हिसाब से भाई साहब क्या हो जाएगा, Planck के हिसाब से energy of the radiation will be h into frequency. Energy of the radiation will be equal to Planck's constant into frequency, okay. लेकिन क्या हर एक इंसिडेंट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवा पाएगा? सो द आंसर इज नो, ठीक है. एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन हैज टू मैच विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एंड दिस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी is known as the threshold frequency. This certain minimum frequency is known as the threshold frequency. Are we clear? Okay. This certain minimum frequency is known as the threshold frequency. Are we clear on this one, people? Okay. So energy. So this is represented as this. Okay. This is represented as frequency naught. Okay. So if let's say there is an energy that is having, okay, ये आपका threshold frequency meet हो गया. जैसे ही threshold frequency की energy इस पे गिरेगी, आपको दिखेगा electrons are getting emitted. Now if you happen to increase the frequency, more than this, then what will you see? These electrons will now carry an energy. So there will be a certain amount of kinetic energy acquired by the electrons. What will be the kinetic energy? Incident energy radiation minus threshold energy. Okay. So incident energy कितना हो गया आपका? h into frequency minus threshold energy will be h into threshold frequency. This will be the kinetic energy of the emitted electron. So this is what? Kinetic energy of emitted electron. Are we clear on this problem? So when light of a certain frequency is fall on a metal surface, first of all electrons are emitted. This phenomenon itself is known as photoelectric effect. When light of a certain frequency fall on a metal surface, electrons are emitted, and this phenomenon is known as photoelectric effect. Now this light will be emitted when? This light will be emitted when it actually crosses a certain minimum benchmark of frequency, and that is known as threshold frequency. So threshold frequency cross करेगा तभी ऐसा होगा. So this is basically your threshold frequency. Equal to h degree. Now V has to be greater than V naught. So if you need to have a kinetic energy of the emitted electrons, it actually be E minus E naught. It is h minus h naught. Are we clear on this one, people? Okay. Okay, so when incident radiation falls on the metal surface, the photon of incident radiation collides with the electron in the metal atom. During this collision, the photon transfers all its energy to an electron, leading to its ejection from the metal atom. So it will be basically ejected from the metal atom. But this happens only
if the energy of the incident radiation is above a certain value, and this is called the threshold energy. This is called the threshold energy. Threshold energy is basically energy corresponding to a certain minimum value. During this photon transfers all its energy to an electron, leading to its ejection from a metal atom. But this, तो see, ये फोटोन आया और ये इलेक्ट्रॉन है, ठप से इसमें मारा, इसने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी, तो ये कभी जाए, अभी ये क्या करेगा, ये भाई साहब निकल जाएगा मेटल के सरफेस से. मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलेगा, लेकिन मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे. Due to this energy which is incident on the metal surface, the energy of the radiation which is incident on the metal surface, the photons will strike the metal surface with a certain amount of momentum, and this entire momentum will get transferred to the electrons. They will come out, okay, they will start coming out. Now this has to be with a minimum frequency, which is the threshold frequency. If the amount of the incident radiation is more than the threshold frequency, then these electrons will gain a certain amount of kinetic energy. Are we clear? Okay. It is assumed that one photon interacts with only one electron. It neither transfers its energy to more than one electron nor combines with other photons to transfer more energy. क्या time है? So important terms associated. So it is assumed that one photon interacts with one electron. तो एक photon का भाई साहब एक electron से ही interaction होता है. It neither transfers its energy to more than one electron nor combines with other photons to transfer more energy. Okay. So let's look at it. Important terms associated with photoelectric effect. Threshold energy. What is this threshold energy, bachcha body? Threshold energy is E is equal to H into V naught. Okay, E is equal to H into V naught. The minimum energy which is required to eject an electron from the metal surface when light is incident on it, this is called as threshold energy. What is the threshold energy? Minimum amount of energy that is required to, so this is basically threshold frequency. H is basically the Planck's constant. E is the threshold energy, E naught. E naught is equal to H into V naught. So E naught is basically equal to H into V naught. H is the Planck's constant and V naught is the threshold frequency. ये amount अगर गिरता है किसी metal के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना चालू हो जाते हैं, लेकिन इससे कम में बात नहीं बनेगी. अगर इससे कम की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे. सो फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस वी नीड टू हैव एन एनर्जी which will be either equal to or greater than the threshold energy. So this radiation which is falling on the metal surface has to have a frequency which is either equal to or more than the threshold frequency. इससे ज़्यादा होना ही पड़ेगा या इसके बराबर होना पड़ेगा फॉर देखो कोई भी समझ लो ये मेटल सरफेस है, कोई भी लाइट को अगर हम मेटल सरफेस पे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे. यू नीड टू हैव एन एनर्जी विच इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, and threshold energy is what? H into frequency naught. Okay, clear hai, clear hai, clear hai. Threshold frequency are characteristic. So this is basically characteristic minimum frequency. हर metal के लिए अलग अलग होता है. All metal surfaces or all metals have this characteristic minimum frequency which is required for ejection of electrons from the metal surface is known as the threshold frequency. This is known as the threshold frequency. Below this frequency photoelectric effect is not observed, or threshold frequency is the minimum frequency above which all other frequencies will go give photo emission for that particular piece of metal. Are we clear on this one, people? Okay. So characteristic minimum frequency which is required for ejection of electrons from the metal surface is known as the threshold frequency. So what is threshold frequency? A characteristic minimum frequency which is required. Characteristic minimum frequency which is required for ejection of electrons from the metal surface is known as threshold frequency. ये हर एक मेटल का अलग अलग होगा. All metals will have different threshold frequency. So a characteristic minimum frequency which is required for ejection of electrons from the metal surface is known as the threshold frequency. इसके नीचे वाले frequency में photoelectric effect is not observed, or threshold frequency is the minimum frequency above which all other frequencies
will give photo emission, okay, for that particular piece of metal. So it is a characteristic property of the metal, okay. For a particular frequency v of the incident photon, अगर आपकी जो incident light है उसकी frequency threshold frequency से ज़्यादा हुई तो महज इलेक्ट्रॉन will not float on the surface of the metal, they will have a kinetic energy now, क्योंकि ये ज़्यादा frequency से strike कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो समझ लो तुमको कोई तुम खड़े हो, तुमको कोई थोड़ा सा धक्का दे रहा है तो तुम मूव नहीं कर रहे हो, थोड़ा और धक्के को मारेगा तो तुम थोड़ा सा मूव करोगे, लेकिन दूर से दौड़ता हुआ आए तो तुम आगे चले जाओगे, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग हियर, somebody is basically pushing you, you are not moving, a little more force then you start to move. Now if this person comes running, then obviously you will be thrown at a little more distance, because what has happened here, he has crossed the momentum required for you to move, so you will be moving or maybe falling down, okay. So the same happens here as well. If the energy of the incident radiation is more than the energy, okay, then it will basically impact, okay. So this will have a kinetic energy, they will have a kinetic energy. Are we clear on this one? At a frequency of v greater than v naught, the entire energy is transferred to electron, part of the energy is used to overcome the attractive force and rest of the energy becomes the kinetic energy. So attractive force is there, देखो भाई साहब आपके एटम में एक अट्रैक्टिव फोर्स तो है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखता है, तो भाई साहब फोटोन आया कहीं से और ठप से इसको मारा तो ऐसे मूव नहीं कर जाएगा, इसको पहले वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. देयर इज अ बॉन्डिंग दैट इज देयर between the centrally charged, positively charged nucleus and the electrons which are revolving around the atom. So first it has to break this bond, and there is some amount of force that is required. So amount of energy, some amount of energy is gone in breaking the bond, and the remaining energy will be becoming the kinetic energy of the electron. Okay, the kinetic energy of these electrons increases with an increase in the frequency of the light used. So if you happen to increase the frequency of the light used, the kinetic energy will increase. So let's say if we have, as I said, let's say this is basically a metal surface. So let's say this is basically a metal surface, and there is a light which is falling on this metal surface. It has an energy. This light basically has an energy which is given by h into frequency, and this frequency is more than the threshold frequency. So obviously the energy of this light or radiation will be more than the threshold energy. If that's the case, then what will happen? The electrons will just not flow. तो देखो बहुत सारी चीजें हैं. पहली तो देखो पहला सिचुएशन क्या है? Let's say एक इंसिडेंट रे है, okay, and here the frequency is lesser than threshold frequency. So will electrons get emitted? No emission. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? No photoelectric emission. No photoelectric emission. Okay, no photoelectric emission. Why बच्चा body? No photoelectric emission. There is no photoelectric emission because the energy of the incident radiation is lesser than the threshold energy, or we can say that the frequency of the radiation is lesser than the threshold frequency. Okay, so no emission here. Now let's take the second case. So this is basically case number 1, wherein the energy of the incident radiation is lesser than the threshold energy. Okay, now let's say case number 2. Okay, so let's say case number 2, wherein we have basically this is incident radiation. Okay, so let's say this is E is equal to h into frequency. Okay, here basically let's say V is equal to V. Okay, let's say जितना उसका threshold frequency है उसके बराबर है. So let's say equal. If this is equal, what will happen? E is equal to h into frequency. So V is equal to frequency. This frequency is equal to naught. So what will happen? The electrons will just be emitted, but they will float on the metal surface. Electrons are emitted, but they are floating on the metal surface. Okay. So here the electrons are emitted. We will say they don't have any kind of kinetic energy. उनके पास kinetic energy नहीं है. वो सिर्फ metal के surface से निकल के float करेंगे. ठीक है? So electrons are emitted and will lie on the metal surface. They will basically lie on the metal surface. Are we clear? They will lie on the metal surface. Okay, now this is basically second case, wherein your E is equal to E naught, or we can say the incident frequency is equal to the threshold frequency. Are we clear? Okay. So now let's say we have here a metal surface and there is an incident ray. There is an incident ray which is falling.
इंसिडेंट रे भाई साहब फॉल कर रहा है, और यहाँ पे आपका एनर्जी जो है दैट इज मोर देन ई नॉट, दैट इज मोर देन ई नॉट, एनर्जी इज मोर देन ई नॉट. सो व्हाट विल हैपन, h into frequency is more, or rather the incident frequency is more than this frequency. Are we clear? So now this extra amount of energy will actually get converted into kinetic energy of the emitted electrons. So now the kinetic energy of them, so we can say that is E minus E naught will be equal to kinetic energy, or we can say, so what is E basically, h into incident frequency minus h into threshold frequency, this will be equal to the kinetic energy of the emitted electrons. So हम formula क्या डाल सकते हैं, half mv का square, where m is basically what, mass of an electron, m is the mass of an electron, v is what, the velocity of the emitted electron, velocity of the emitted electron. This is equal to h of v minus h of v naught, that will be h of v minus v naught. Are we clear? Clear on this one people? हम समझ में आता हम? Okay, okay, okay. So threshold wavelength. Now what is threshold wavelength? The wavelength which corresponds to the threshold frequency is known as threshold wavelength. So अभी देखो भाई साहब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपका C जो है वो क्या होता है, C is equal to lambda into frequency. So threshold lambda into frequency, ठीक है, C की वैल्यू वही रही, C is not going to change because all these are basically applicable to electromagnetic radiation, ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे 8 को हम 2 into 4 लिख सकते हैं और बस 4 into 2 भी लिख सकते हैं ना, so ये तो कांस्टेंट ही रहा, इन दोनों की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ठीक है. सो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, सो इन केस यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर पर्टिकुलर रेडिएशन that will be required in order to emit electrons from the surface, this will be equal to C by V naught. Are we clear on this one people? ठीक है, so this will be C by V naught. Not much of calculation बच्चा buddy, these are very simple formulas, please happen to remember them, and as and when you keep on practicing it will make your basic clear. Okay, so here we have V is equal to V naught. Okay, at a frequency of V which is greater than V naught, at a frequency which is greater than the threshold frequency, the entire energy is transferred. Part of energy is used to overcome the attractive force, and the rest of the energy becomes the kinetic energy of the electron. The kinetic energy of these electrons increases with an increase in the frequency of the light used. Okay, so kinetic energy भाई साहब बढ़ जाएगा, ठीक है, increases with an increase in the frequency of the light used. So kinetic energy of the electrons increases with an increase in the frequency of the light used, not with intensity. Intensity से क्या बढ़ेगा? Intensity से number of electrons बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली भाई साहब जितना आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. इफ यू वांट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस, यू नीड टू इंक्रीज द frequency of the incident radiation. The more the difference between the incident radiation and the threshold frequency, the more will be the kinetic energy. Are we able to correlate to this? Okay. अगर आपको नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ाने तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी से आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी से आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा. सो एक क्वेश्चन बना था आपका बहुत पहले कि इंटेंसिटी से अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है, इफ आई इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस, व्हाट डू आई नीड टू इंक्रीज? ऑप्शंस में दिया हुआ था भाई साहब आपका इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड सो फोर्थ. अगर आपने इंटेंसिटी क्लिक किया, इट्स रॉन्ग, बिकॉज़ इंटेंसिटी इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, इट्स जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड. इंटेंसिटी से क्या होता है, ज्यादा लाइट गिरेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी उतनी ज्यादा फोटॉन्स गिरेगी और उतनी ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जाकर स्ट्राइक करेगा और इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी एमिटेड विल बी हायर, however they will not have a higher kinetic energy. इससे काइनेटिक एनर्जी नहीं है. काइनेटिक एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो जिस इंसिडेंट रे को आप यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाना पड़ेगा. यू विल हैव टू इंक्रीज दैट फ्रीक्वेंसी. करेक्ट? ओके. So if V is equal to V naught, then thus the photoelectric effect will take place and the kinetic energy of the ejected photoelectron will be zero. If V is less than V naught, no photoelectric absorb is in this case. ठीक है, अगर V आपका V naught से लेस हो गया तो आपको कोई भी photoelectric effect यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. Are we clear on this one? Okay. Threshold wavelength, the wavelength which corresponds to the threshold frequency is basically the threshold wavelength. Okay. Threshold wavelength is the maximum wavelength below which all other wavelengths will give photo emission for that particular piece of metal. ठीक है, ये maximum wavelength है. Threshold wavelength is the maximum wavelength below which all other wavelengths will give photo emission. Below which, अब इस चीज को समझिए,
देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी, आपका भाई साहब जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना भाई साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप भाई साहब बोल रहे हैं कि बिलो फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इसको घटाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे भाई साहब, है ना, क्लियर है। और वैसा ही है भाई साहब, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर भाई साहब इसको आप बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, देखो कि हम जैसे बोलेंगे कि बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सो अबव अ सर्टेन वेवलेंथ देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो बिलो दिस देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट समझिए, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका वी नॉट और भाई साहब आपका लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका भाई साहब ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट्स से हमने यहाँ पे वी नॉट ले लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? लैम्डा नॉट। रिलेशनशिप तो वही रहेगा ना, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की। अभी हमारा स्टेटमेंट क्या है? बिलो दिस फ्रीक्वेंसी देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हम बोलेंगे अबव दिस वेवलेंथ देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अबव दिस वेवलेंथ देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसका मतलब इधर एट दिस वेवलेंथ और बिलो इट देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहां पे सेंटेंस क्या होगा? बिलो अ फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे क्या बोलेंगे भाई साहब? अबव लैम्डा नॉट विच इज बेसिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, सो यहां पे भाई साहब, इफ लैम्डा इज लेसर देन लैम्डा नॉट, photo emission will take place. If lambda is equal to lambda naught, photo emission will take place. If lambda is greater than lambda naught, no photo emission will take place. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता रहेगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। जैसे ही भाई साहब आपका इंसिडेंट रे का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से गिर जाएगी और फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, सो इफ लैम्डा दैट इज इंसिडेंट वेवलेंथ is lesser than threshold wavelength, then the photo emission will take place and the ejected electron will possess kinetic energy. They will have a kinetic energy. If lambda, that is incident wavelength, is equal to the threshold wavelength, then just photoelectric emission will take place. However, the emitted electrons will not have a kinetic energy. They will not have a kinetic energy. Okay? The kinetic energy of the photoelectrons will be zero. If lambda is greater than lambda naught, which means that the incident wavelength is greater than the threshold wavelength, then no photoelectric emission will happen, because in this case what is happening, your threshold frequency या जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो रही है। क्लियर है? क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप भाई साहब लैम्डा को बढ़ा रहे हैं तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर आपने देखो लैम्डा को बढ़ा दिया है, किससे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बढ़ा दिया है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो फोटो एमिशन नहीं कॉज कर पाएगा। क्लियर है? ओके, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये भाई साहब जो है आपका, दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ड्यूरिंग अ फोटो इलेक्ट्रिक कोलिजन द एंटायर एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। सारा का सारा एनर्जी जो है भाई साहब इलेक्ट्रॉन का, सॉरी फोटोन का इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाता है, इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स and rest of the energy becomes kinetic energy of the electron. Rest of the energy becomes kinetic energy of the electron. He also gave a mathematical expression based on the energy conservation as below. Energy of the incident photon is equal to work function. Now what is work function, bacha body? What is work function? It is the minimum amount of energy that you require in order to have electrons emitted. So this is work function. Energy of the incident photon is equal to work function plus kinetic energy of the emitted electron. Energy will be equal to work function plus ये E naught है बस, और कुछ। दिस इज द अदर वन। भाई ये जैसा है का, तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखो हमने पढ़ा था ना, E माइनस ई नॉट इज इक्वल टू वॉट? के ई। दिस इज बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसी को भाई साहब उधर ले लोगे तो E नॉट प्लस के ई। दिस E नॉट इज नथिंग बट द वर्क फंक्शन। E नॉट इज बेसिकली इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही हो गया। तो इसी को अपन क्या लिख रहे हैं?
E is equal to work function plus kinetic energy. So what is work function? The minimum amount of energy that you need in order to basically make the photo emission possible. That is called the work function. Okay. So according to Einstein, a photon electron collision, the entire energy of the photon is transferred to the electron. Part of this energy is used to overcome the attractive force. The attractive force and the rest of the energy becomes the kinetic energy of the electron. बाकी का energy भाई साहब क्या बन जाता है? Kinetic energy of the electron. तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू phi plus kinetic energy. What is this phi? This is basically the work function. Work function is equal to how much? H into V naught. Are we clear? Okay. So phi is the work function of the metal, also denoted by all these terms. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W naught, E naught, and E is the energy of the incident photon. Kinetic energy of the emitted. K is basically the kinetic energy of the emitted electron. The minimum energy required to eject an electron from the metal surface is known as the work function. So what is work function? The minimum amount of energy that you require in order to ensure that electrons are emitted from the metal surface. Okay, so that is called work function. Energy of the incident photon can be written as E is equal to H into V. Work function is equal to threshold energy plus this. Okay, so this will be H V minus H V naught is equal to half m v का square. So H V minus V naught is equal to half m v का square. Okay, are we clear on this one people? H यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? Planck's constant which has a value of what? 6.636 into 10 raised to minus 34. V is basically the, ये जो V है देखो, ये V है और ये भाई साहब आपका frequency है, ठीक है? V is basically the velocity of the ejected electron, that is half mv square, which is the kinetic energy. V, this is basically the frequency of the incident photon. V naught is the threshold frequency. M is the mass of the electron. Kinetic energy is basically equal to H into V minus V naught. So H is equal to HV is equal to HV naught plus kinetic energy. Are we clear on this one people? तो देखो kinetic energy कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा आपका. Kinetic energy को अपन ने किसके साथ प्लॉट किया हुआ है? Frequency के साथ. So this is the kinetic energy and this is basically the frequency and this is the slope H. ठीक है? What is slope? देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसको ध्यान से समझना, ठीक है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? भाई आपने क्या किया है? काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया हुआ है. किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी. इंसिडेंट रे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी. जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा. सो स्ट्रेट है भाई साहब ग्राफ, तो ये स्ट्रेट बनने वाला है. यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? व्हाट इज हैपनिंग हियर? वी नॉट. वी नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब इतना फ्रीक्वेंसी तो आपको लगेगा इन ऑर्डर टू, यहाँ से चालू होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से चालू होगा. यहाँ पे कुछ भी एमिशन नहीं होगा. आप धीरे 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 फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं. V1 V2 V3 V3 करते करते V नॉट तक पहुंचे. अभी एमिशन चालू हुआ, ठीक है? अभी एमिशन चालू हुआ. सो दिस इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी that you would require in order to basically ensure that photoelectric emission starts. This is basically now the photoelectric emission has started. So this is basically slope H. What will be the value? So plot of kinetic energy. So if I take this, so this will be basically what? Minus work function. Minus work function हो जाएगा ना. देखो kinetic energy क्या है भाई साहब आपका? Kinetic energy plus work function is equal to what? Is equal to energy. Okay? अगर energy को भाई साहब मैंने जीरो कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वर्क फंक्शन. देखिए एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई है? इस वैल्यू में जीरो हो जाएगी ना भाई साहब. दिस इज बेसिकली जीरो, ठीक है? यहाँ पे आपने जीरो कर दिया तो ये इसलिए आपका माइनस हो गया, ठीक है? दिस विल बी बेसिकली माइनस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस. सो एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ. ओके, रीअरेंजिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट. एच वी माइनस आपका हो जाएगा ये, है ना? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को अपन ने क्या लिखा भाई साहब? दिस इज इक्वल टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज एच वी नॉट. अगर इसके साथ हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? h, है ना? v हो गया आपका फ्रीक्वेंसी. भाई देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, काइनेटिक एनर्जी को आपने किस में प्लॉट किया है? y एक्सिस पे. सो इट विल बी y. फ्रीक्वेंसी को आपने किस में प्लॉट किया है? आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है. अभी इन दोनों को कंपेयर करो भाई साहब. h हो गया आपका स्लोप, ये v क्या हो जाएगा आपका x, और ये माइनस पाई क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट.
इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस पाई यहाँ पे आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट। जहां पे एक ग्राफ वाई एक्सिस को काटा है वो उसका वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इक्वल टू एम सी से आपका यहाँ पे एम कितना हो गया, एच सी हो गया आपका माइनस पाई, ठीक है। सो व्हेन वी आर प्लॉटिंग द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन फॉर photoelectric emission of a particular metal, then we will get this kind of a graph, okay। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी h, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस पाई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, एंड x की वैल्यू हो जाएगी v, ओके। तो भाई साहब फैक्टर अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो करंट, ओके। सो अभी देखो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, किन किन चीजों का भाई साहब इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में बच्चा पार्टी, व्हाट आर द थिंग्स दैट ड्यू टू इंसिडेंट। तो मैंने आपको बोला कि भाई साहब आपका जो इंटेंसिटी है, ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन का, इंटेंसिटी चेंजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बट डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इरेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इंटेंसिटी से क्या चेंज होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट है, but it will not have any effect on the kinetic energy. Are we clear? एक मिनट, हाँ भाई साहब, just one moment people. ओके, सो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डज नॉट हैव,
तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, ये लोग क्यों अभी जमा हो रहे हैं यार भाई साहब, अभी तो टाइम नहीं दिया था मैंने। ठीक है, ओके। सो इंटेंसिटी बेसिकली, अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, व्हाट विल हैपन, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, हाउएवर इट विल नॉट इंपैक्ट द काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी को मैंने किसके साथ प्लॉट किया हुआ है, इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी से क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ रेज हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बोला ना, किसी बल्ब का इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया है तो नंबर ऑफ रेज बढ़ गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द सेम, number of rays have increased. If number of rays have increased, then what has increased? Number of photons have increased. If number of photons have increased, then what will increase? Obviously the collisions will increase. Okay, so आपके intensity को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम intensity को बढ़ाते हैं तो what will happen, number of photons will increase, and when the number of photons will increase, what will happen, obviously more emissions will happen. ठीक है, आपके emissions बढ़ जाएंगे. If the number of photons increase, then more collisions will happen. तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं दे विल इंक्रीज, क्लियर है, बट द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी विल ओनली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. अगर आपने भाई साहब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा. क्लियर है, आर बी क्लियर? बहुत उदास लग रहे हो तुम, क्या हुआ रे? ओके ओके, सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने इंटेंसिटी के साथ प्लॉट किया हुआ है बच्चा बॉडी, ओके, if we happen to increase the frequency, अभी अगर हमने भाई साहब लेट्स से हमने ऐसा एक फ्रीक्वेंसी पकड़ा है जहां पे this is greater than the threshold frequency, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा? इट विल स्टार्ट. तो आपने ऐसा एक फ्रीक्वेंसी लिया है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया, अभी आप फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा रहे हैं, यू आर कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एज कांस्टेंट. तो यहां पे जितना रहेगा, यहां पे जितना रहेगा, यहां पे जितना रहेगा वो सेम रहेगा भाई साहब, क्योंकि आप एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पे हो विच इज ग्रेटर देन द threshold frequency, so there will be a kinetic energy of the emitted electrons. However, since you are not increasing the frequency, you will not notice a graph like this. समझ में आ रहा है? आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है तो आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. हाँ, आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने वाली. ठीक है, ओके. सो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी चेंजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बट डज नॉट हैव any effect on the kinetic energy of the ejected electrons. As there is no change in kinetic energy with respect to intensity, thus a straight line parallel to the x-axis upon plotting a graph. So this is basically a straight line. Okay, कोई change नहीं, so this will be a straight line. Okay, due to frequency of incident radiation, change in frequency of the incident light affects the kinetic energy of the emitted electron when V is greater than V naught. Okay, अब यहाँ पे देख लो भाई साहब, V greater than V naught है तो obviously फोटो emission होगा. Okay, due to frequency, जैसे जैसे आप भाई साहब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भाई भाई साहब आपका बढ़ जाएगा. तो देखो फ्रीक्वेंसी है, इसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी देखो बढ़ता जाएगा. यहाँ तो स्टार्ट है और यहाँ तक आपको आना पड़ेगा. अगर इस ग्राफ को बैकवर्ड ले लूं तो ये जहाँ पे इसको काटेगा, दिस विल बी बेसिकली नेगेटिव वर्क फंक्शन. ठीक है, क्लियर? सो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अफेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन where V is greater than V naught. The plot of kinetic energy and frequency would give a straight line with a slope of h. Y is equal to mx plus c होता है भाई साहब. तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आपने y एक्सिस डाला है तो आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, एच वी नॉट प्लस वाई इंटरसेप्ट, एच वी नॉट, सॉरी. ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन, ये भाई साहब आपका h. ठीक है, तो आपका दिस बेसिकली द वर्क फंक्शन, इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो c इज इक्वल टू बेसिकली वर्क फंक्शन. ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. सो विद द स्लोप ऑफ द वर्क फंक्शन. ओके ओके ओके, अगर भाई साहब यहाँ पे हो गया effect of current. So the due to frequency of incident radiation, change in frequency of the incident light affects the kinetic energy of the emitted electron where V is greater than V naught. The plot of kinetic energy and frequency would give a straight line with a slope of h and an intercept of -phi. इसको भाई साहब पीछे खींचेंगे तो -phi आ जाएगा आपका. ठीक है, ओके. Effect of photo current due to intensity of incident radiation. Intensity changes the number of electrons. ठीक है, emitted. अगर आपका भाई साहब ऐसा केस लिया है जहां पे आपने फ्रीक्वेंसी को फंक्शन लिया है तो क्या फोटो एमिशन चालू हो जाएगा? फोटो एमिशन चालू हो जाएगा भाई साहब आपका. ठीक है, एमिशन विल स्टार्ट. ठीक है, इंटेंसिटी चेंजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted when V is greater than V naught, thus affecting the amount of the photo current. तो आपका फोटो करंट बढ़ जाएगा भाई साहब, फोटो करंट विल इंक्रीज. प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी विल गिव अ लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ वेयर V is greater than V naught. ठीक है, आपका भाई साहब देखो V करंट मतलब फोटो करंट है. देखो ये भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज जब मूव करेंगे तो करंट जनरेट करेंगे. व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट बच्चा बॉडी? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना भाई साहब. करंट इज व्हाट?
भाई साहब करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट वो फ्लो भी कर रहे हैं, तो क्या करंट जनरेट कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से भाई साहब क्या जनरेट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से जनरेट हो रहा है भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो अभी भाई साहब इफेक्ट ऑन फोटो करंट हम देख रहे हैं। ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी से क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा, आप बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करंट पे फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा भाई। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टी। तो अगर आपके Q जो है, अगर आपके Q क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जैसा भी होगा, Q बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा भाई साहब, है ना। Q विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या Q नहीं बढ़ेगा, Q बढ़ेगा भाई साहब। अगर Q बढ़ेगा तो भाई साहब I भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ड्यू टू इंटेंसिटी, तो जैसे ही आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो अगर यहां तक हम क्या प्लॉट करते आ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ। अभी अगर हमने फोटो करंट को इंटेंसिटी के साथ प्लॉट कर दिया तो वी विल गेट अ स्ट्रेट ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप भाई साहब प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, या आप सॉरी काइनेटिक एनर्जी को अगर आप प्लॉट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने भाई साहब प्लॉट किया इंटेंसिटी के साथ, तो वी विल गेट अ, कोई इंक्रीज नहीं होगा इस ग्राफ में, देयर इज नो इंक्रीज इन द ग्राफ। लेकिन अगर आप के साथ प्लॉट करें, देयर विल बी एन इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, number of electrons that will be emitted will increase, and if the number of electrons are increasing, the total amount of charge will increase. If the total amount of charge is increasing, obviously current will also increase. Are we clear on this? So current को के साथ प्लॉट करेंगे भाई साहब, तो आपको भाई साहब इंक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ इंक्रीजिंग करंट भी मिल जाएगा। Are we following this? ठीक है। Okay, effect on photo current due to intensity of incident radiation. So if you happen to increase the intensity of incident radiation, बच्चा बॉडी, intensity of incident radiation, if you happen to increase the intensity of incident radiation, intensity changes the number of electrons emitted when V is greater than V naught, thus affecting the amount of photo current. Plotting the value of current with respect to intensity will give a linearly increasing graph. तो आपका ये क्या बन जाएगा भाई साहब, linearly increasing graph बन जाएगा, ठीक है। Due to frequency of incident radiation, change in the frequency of incident light does not alter the number of electrons, ठीक है। अगर आपने frequency को change किया तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी, वो मूव स्पीड से करेंगे, लेकिन इट विल नॉट चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहा है बच्चा बॉडी, तो आपका करंट किससे होता है, करंट होता है भाई साहब आपका Q by E से, और Q क्या होता है, सॉरी Q by T, NE by T। तो आपका ये नहीं बढ़ रहा है, दिस इज सेम विथ फ्रीक्वेंसी, तो आपका करंट भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया, अगर हमने करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट does not alter the number of electrons emitted. ठीक है, विच गिव्स द करंट एट अ कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगर हम भाई साहब इंसिडेंट इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा। तो करंट किस पे डिपेंडेंट है, फोटो करंट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, फोटो करंट विल इंक्रीज। इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप भाई साहब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप भाई साहब इंटेंसिटी को इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर आप भाई साहब इंटेंसिटी को प्लॉट कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी का कोई इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी पे नहीं आएगा, इट विल बी अ फ्लैट कर्व, ओके।
if you are plotting kinetic energy against frequency, so with increasing frequency the kinetic energy increases, straight line graph, ठीक है. फोटो करंट को इंटेंसिटी के साथ प्लॉट करें तो क्या बनेगा, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बिकॉज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेटिंग एमिटेड आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस द फोटो करंट इंक्रीजेस. लेकिन फोटो करंट को अगर आप फ्रीक्वेंसी से प्लॉट कर रहे हैं तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, फ्लैट कर्व मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोटो करंट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इफ यू आर प्लॉटिंग फोटो करंट विथ फ्रीक्वेंसी, if you are increasing the frequency, it's not going to impact on the number of electrons that are getting emitted, so it will not impact the photo current. Okay, are we clear? Okay. ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो भाई साहब अगर आपने भाई साहब करंट का देखा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन भाई साहब फोटो करंट नहीं बढ़ने वाला, ठीक है. ओके. When HV is greater than less than HV नॉट, मतलब क्या है, आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका भाई साहब जो एनर्जी है दैट इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. When HV is greater than HV नॉट, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द वर्क फंक्शन. ये आपका वर्क फंक्शन है, HV नॉट इज इक्वल टू फाई और वर्क फंक्शन W नॉट भी इसको लिख सकते हैं. That is the threshold energy required for emitting photoelectron. Therefore, no electron would be emitted in this case. तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, कोई ग्राफ बन ही नहीं सकता, ठीक है. ना ही इंटेंसिटी का ग्राफ बन सकता है, ना ही भाई साहब आपका इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी नहीं बनेगा, ना ही भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा, ना ही काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आपका इंटेंसिटी का कोई ग्राफ बनेगा. यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो कहानी है वही चालू नहीं हुई है, ठीक है. दैट इज नॉट स्टार्टेड. So therefore, no electron would be emitted in this case. There will be no photoelectric effect if frequency of incident radiation is lesser than the threshold frequency, no matter how the intensity of it is. Okay? Are we clear? Case 2, when HV is equal to HV naught, मतलब just आपका जो work function के बराबर जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है वो बराबर वर्क फंक्शन के है, ठीक है. कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है बराबर उसके वर्क फंक्शन का है. So the incident light has energy equal to the minimum energy required to emit an electron. However, no extra energy is present. इसमें कोई extra energy नहीं है. The electron would just come to the surface and possess no kinetic energy in this case. तो इसके पास भाई साहब कोई kinetic energy नहीं होगा, ठीक है. Will just come to the surface and possess no kinetic energy. When HV is greater than HV naught, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, amount of energy possessed by the incident light is higher than the work function. ये भाई साहब आपके हायर देन द वर्क फंक्शन है. तो अभी आपका जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी. अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द इंसिडेंट लाइट इज हायर देन द वर्क फंक्शन. इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन वुड गेट इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस एज इट वुड पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी. इसका भाई साहब काइनेटिक एनर्जी होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया. कैन वी स्टॉप दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब. The photoelectrons for photocurrent can be stopped by applying a minimum potential called the stopping potential. देखो अभी आपको चाहिए कि आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये एक मेटल है, ये मेटल है, इस पे लाइट आ रही है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है. लेट्स से इस लाइट का जो एनर्जी है वो या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज़्यादा है, because of which electrons are getting emitted. So these electrons might have a zero velocity or might have some amount of velocity, okay, but they are getting emitted. So photoelectric emission has started. Can you stop the emission? So the answer is by creating certain external factors we can stop the emission of electrons, ठीक है. The photoelectric or photocurrent can be stopped by applying a minimum. देखो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव की तरफ खींचेगा भाई साहब. तो अगर हम तुम इलेक्ट्रॉन के सामने एक इलेक्ट्रॉन रख दो तो नेगेटिव रख दो तो किस जाएगा, समझ में आ रहा है? यही लॉजिक है, ठीक है. तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे लेकिन आपने कर दिया है, मतलब नेगेटिव में ला दिया है, अभी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, समझ में आ रहा है? तो तुम वर्क फंक्शन को कवर, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. तुमने जब पोटेंशियल अप्लाई किया, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव किया आपने, ठीक है. इसलिए आपने मेटल को रखा, गिरा, ये लेकिन ये गा नहीं रहा है, ठीक है. So what happened? The photoelectrons or photocurrent can be stopped by applying a minimum potential, and this is called the stopping potential, which is proportional to the maximum kinetic energy of the photoelectron. ये जो maximum kinetic energy of the photoelectron है उसके बराबर होता है, ठीक है.
द स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरेटेड बाय Vs और V नॉट, द SI यूनिट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V वोल्ट, ठीक है, आपका भाई साहब SI यूनिट हो जाएगा वोल्ट, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्सप्रेशन Vs आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई साहब, E into Vs, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। अब मैक्सिमम एनर्जी भाई साहब जितना आपका इंसिडेंट रेडिएशन है -5 व्हिच इज द वर्क फंक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E into Vs is hp minus 5, तो Vs की वैल्यू क्या हो जाएगी hv on this, देखो इसको ऐसे समझो, आपका भाई साहब यहाँ पे एक लेट्स से एनर्जी आ रहा है, एनर्जी की वैल्यू कितनी है बच्चा बॉडी, एनर्जी की वैल्यू है h into v, और लेट्स से v आपका वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, लेट्स से आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दैट इज एच वी नॉट, इसको अपन 5 लिख सकते हैं। तो हमारा भाई साहब इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस ई नॉट, है कि नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट भाई साहब आपका कितना है, एच वी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, ठीक है, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे वही कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चा बॉडी, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E। तो अपन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप the emission of electrons from a metal surface, from a metal surface due to photoelectric effect, ठीक है, क्लियर है। So the potential required to stop the emission of electrons from a metal surface due to photoelectric effect, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, E into Vs, are we getting this people, हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू E into Vs, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे E into Vs इज इक्वल टू H into फ्रीक्वेंसी माइनस 5, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। तो आपका Vs का वैल्यू क्या हो जाएगा, HV minus 5 अपॉन E, this will be the value of Vs, are we clear on this one people, that is the stopping potential, clear बच्चा वाड़ी, are we clear on this, okay। So आपका भाई साहब Vs will be HV minus work function, retarding potential, a potential which causes the speed of a moving particle to be reduced, इसको अपन भाई साहब रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाई साहब ये पोटेंशियल उसको ना, ठीक है, तो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये इसके एक्सेलरेशन को धीमा कर देगा, ठीक है। सो पोटेंशियल which is deliberately applied in order to decrease the kinetic energy of the emitted electrons during a photoelectric effect is known as retarding potential, okay। Collector plate potential, if the potential difference between the cathode plate and the anode plate also called the collector plate, तो भाई साहब आप जब कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो कैथोड और एनोड के बीच में जो डिफरेंस रखते हैं उसको अपन बोलते हैं कलेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, ओके। Threshold frequency is the minimum frequency of incident radiation that is required to emit an electron. The correlations are, आपने क्या क्या पढ़ा भाई साहब, ये हो गया एनर्जी, this will be the threshold energy plus kinetic energy maximum, ठीक है। HV this is half mv square, ठीक है, तो this will be basically work function, HV naught is work function plus half mv square, where HV is equal to this, where phi is known as the work function and V naught is the threshold frequency, E is the charge of an electron। तो आप भाई साहब इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के जगह पे क्या लिख सकते हो, ई वी नॉट या ई वी एस भी लिख सकते हो। ई इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट और वी एस आर बेसिकली व्हाट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली ई वी नॉट, वेयर फाई इज द वर्क फंक्शन and V naught is the threshold frequency, E is the charge of the electron and V naught is the stopping potential. Increasing the intensity of incident light increases the photocurrent due to more number of emitted electrons but does not affect the energy of the ejected electron.
ये भाई साहब इसके एनर्जी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे इट इंक्रीजेज द फोटो करंट बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेटिंग एमिटेड विल इंक्रीज, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग एमिटेड विल इंक्रीज देन ऑब्वियसली फोटो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली an increase in frequency of light increases the kinetic energy of emitted electrons but does not alter the photocurrent as there is no change in the number of emitted electrons, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको जरा करने की कोशिश कीजिए। देयर इज अ सवाल विच इज पेंडिंग, प्लीज डू इट, फटाफट फटाफट। अरे यार a certain metal when irradiated with light of frequency, इसकी भाई साहब कितनी फ्रीक्वेंसी emits photons with twice the kinetic energy। अब भाई साहब इक्वेशन क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस एच वी है ना, या बोलते हैं भाई साहब यहाँ पे एनर्जी क्या है बोलो, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ओके। सो तो यहाँ पे आपका देखो एनर्जी मतलब कितना हो जाएगा, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, ठीक है। सो एच
इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे h हो गया h, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो 3.2 इंटू 10⁻16 माइनस वर्क फंक्शन हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी 2 दिस इज इक्वल टू एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया भाई साहब अभी 2 इंटू 10⁻16 है, ओके तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 दिस विल बी इंटू 2 इंटू 10⁻16 माइनस 5 ना, काइनेटिक एनर्जी 1 इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2, सो काइनेटिक एनर्जी 1 is twice of kinetic energy 2, so which means that h minus 3.2 into 10⁻16 minus 5 is equal to twice h into 2 into 10⁻16 minus 5, है ना, minus 5, so how much people h minus 3.2 h into 3.2 होगा ना भाई साहब, माइनस कैसे हो गया, this will basically h into 3.2, this is basically how much, this is 3.2 into 10⁻16 h minus 5 is equal to 2h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2h, 2 2s are 4, so that's 4 2 to 4h into 10⁻16 minus 2 5, okay, so minus 5 अगर मैंने इसको इधर ले लिया this will be 5, this will be 4h into 10⁻16 minus 3.2 h into 10⁻16, so that will be how much this is going to be। अभी देखो ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मतलब h into थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी 4h, h को कॉमन निकालो यहाँ पे और 10⁻16 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 minus 3.2, है ना, ये h कैंसिल हो जाएगा, 4 minus 3 बेसिकली हाउ मच 0.8 into 10⁻16, so your threshold frequency will be 0.8 into 10⁻16, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 into 10⁻15 भी लिख सकते हैं, so threshold frequency is going to be how much 8 into 10⁻15, are we clear on this one people? Okay सोल्यूशन देख लेते हैं भाई साहब इसका, तो आपका देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, आपको h को यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ठीक है, h इंटू दिस इक्वल दिस मल्टीप्लाई, तो आपका कितना देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0.8 इंटू 10⁻2, तो 8 इंटू 10 बी द करेक्ट आंसर, ओके। इलेक्ट्रॉन्स चलिए वैसे कर रहे हैं कोशिश, फटाफट क्विक जल्दी, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when exposed to a radiation of wavelength 6800 Armstrong, तो आपका कितना है electrons emitted with zero velocity मतलब क्या फ्रीक्वेंसी 1 जाएगा, ठीक है, सो लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 6800 एंगस्ट्रॉम, which is how much 6800 into 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो गया आपका लैम्डा नॉट, ठीक है, क्लियर है, ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो वेलोसिटी जब हम बोल रहे हैं बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैव स्टार्टेड टू एमिट व्हेन इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी C we know is equal to lambda frequency, so this of the then obviously will be threshold frequency, तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा C by lambda नॉट, ठीक है, C तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू C that is 3 into 10⁻8 upon lambda नॉट that is 6800 into 10⁻⁻10, इतना वैल्यू आएगा भाई, ठीक है, अरे ओके ठीक है, 10⁻8 अपॉन 6800 इंटू 10⁻⁻10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया, तो अपन को अगर भाई साहब की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा h इंटू हो गई, ठीक है, क्लियर है, ओके। The ejection of photoelectron from a silver metal electric experiment is taught by applying a voltage of this much when the radiation of this much is used. Calculate the work function. चलिए फटाफट ऐसे बस को हुआ है, ठीक है, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.35, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे भाई साहब, व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन, कैसे वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, E विल बी इक्वल टू W नॉट प्लस मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके, तो E आपका भाई साहब है क्या h बाई लैम्डा, HC बाई लैम्डा, अभी यहाँ पे पहले आप देखो यहाँ पे V वैल्यू कितनी है 0.35, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है E इंटू वी एस, ठीक है, तो 1.6 इंटू जो Vs दिया हुआ है उसको करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ठीक है, सिंपल ठीक है, E इज इक्वल टू इंटू Vs इज इक्वल टू काइनेटिक मैक्सिमम, तो आपका 1.6 इंटू 0.35,
तो ये आपका एनर्जी मैक्सिमम। इसी को यहाँ पे आप ये एनर्जी आपको कितना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द एनर्जी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेडिएशन ऑफ 256.7 मीटर, ये आपका एनर्जी कितना हो जाएगा hc by लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएशन का कितना हो जाएगा, देखो hc by लैम्डा, hc by लैम्डा, तो h की वैल्यू इतनी हो गई, c की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। तो आपके इस वाले इक्वेशन देखो, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू अभी अपन ने फाइंड कर ली, तो क्या हम वर्क फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली, ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।